अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी है सेकेंड ईयर के पास्ट पेपर्स के ऊपर। ठीक है, आज मैं आपके साथ बायो का पास्ट पेपर शो कर रही हूँ और ये सारे बोर्ड्स के, पंजाब के सारे बोर्ड्स के इसमें पास्ट पेपर्स होंगे, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, आपका जो भी बोर्ड है आप उसके रिलेटेड इसमें हर बोर्ड के ऊपर मैं आपको जो है वो डिस्कस कर दूंगी। तो हम शुरू करते हैं फैसलाबाद बोर्ड से। उसमें सबसे पहले जो एमसीक्यू है वो है इन डीएनए स्ट्रक्चर आर मोर स्ट्रॉन्गली लिंक्ड। ठीक है, पहला एमसीक्यू ये है। सेकंड है इंटर कैलोरी मेरिस्टम्स आर सिचुएटेड एट। थर्ड है जर्म लेयर्स आर फाउंड एट। फोर्थ एमसीक्यू है द प्लांट विच आर स्टिमुलेटेड टू फ्लावर बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर आर सेड टू हैव। फिफ्थ वन है एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH इज सिक्रेटेड बाय। सिक्स्थ वन है बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर। सेवन है डिजीज इन विच बोन डिसॉर्प्शन आउटपेस बोन डिपॉजिट। एट्थ है लिवर फंक्शन आर पाइवटल टू। नाइन्थ है एज FCS राइज टू एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज। टेंथ है द डेजर्ट ऑफ साउथर्न पंजाब इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनियम विथ इन प्लांट्स सेल इज कॉल्ड। 12th है prokaryotes have arisen more than. 13 है if correct proportion of auxin and cytokinin are added in a liquid medium, thousands of copies of new shoots will develop from a single shoot tip by. And 14 है which one of them is mostly used to develop transgenic animal. 15 है what is the risk of hemophilia child in a family when father is the hemophilic child, in a family when father is hemophilic but mother is carrier। ये रिपीट हुआ है, when father is hemophilic but mother is carrier, ये इसका मेन पॉइंट है। 16 है the actual decrease of chromosome occur in, and 17 है which tumor has branches। ये हमारे MCQ यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2, फैसलाबाद बोर्ड 2022 का क्वेश्चन नंबर 2। Distinguish between osmoconformers and osmoregulators. Compare the nitrogen excreted in lower quantities with the one excreted in very small quantities. Differentiate between protonephridium and metanephridium. Give examples. Question number 4 है what is vascular cambium? Which new tissue developed from it? What is phototactic movement? Give example. Define vertebral column. What names can be given to them according to their location? 7 है differentiate between identical and fraternal twins. 8th है which hormone is released by pituitary gland at puberty? Also define follicle atresis. 9th है write a note on profundal zone, which organism inhabit this zone. 10th है write the name of any 8 animals which inhabit coniferous, alpine and boreal forest. 11th है write a note on ocean thermal gradient. एंड 12 है राइट एनी 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से भी हमने 8 अटेम्प्ट करने हैं और 2 में से भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। कंपेयर एडिसन्स डिजीज एंड कुशिंग्स डिजीज। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द रोल ऑफ मिडफ्रेन इन ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर, हाउ एसिटाइलकोलिन इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर। Question number 4 है why Mendel used Pisum sativum garden pea in his experiment. Question number 5 है what is test cross, write its significance. Question number 5 है हमारे पास what is test cross, write its significance. Question number 6 है what are multiple alleles. Question number 7 है what are restriction endonucleases, give an example. Question number 8 है what is RCR, write the role of Taq polymer. Question number 9 है what is gene therapy, what are its 2 methods. Question number 10 है how the relationship of predator and prey is maintained. Question number 11 है compare primary and secondary succession. Question number 12 है differentiate between oteocology and cyneocology. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे पास। उसका पहला क्वेश्चन है डिफाइन न्यू रिलेशन, स्टेट इवेंट्स ऑफ न्यू रिलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मोरूला एंड ब्लास्टूला। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटरप्रेट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर अ लिविंग सेल इफ द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर
डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 7 है कंपेयर माइटोसिस एंड मियोसिस। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज फॉसिल रिकॉर्ड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पार्ट 2। इसमें से हमने 3 पेयर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सेकेंड है व्हाट प्रीडेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। एक इंपॉर्टेंट बात, इस साल स्कीम थोड़ी सी चेंज हुई है। इस बार 21 चैप्टर जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर था लास्ट ईयर तक, इस बार वो लॉन्ग क्वेश्चंस में हो चुका है कन्वर्ट, और उसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन उसकी कौन सी हेडिंग्स बनती हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें आनी है, वो मैंने अपने चैनल पर पूरा उस चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है। आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी मदद से आप हेडिंग्स अपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास हाउ इज स्पोर्ट प्रोवाइडेड टू दोज एनिमल्स विच लाइक अ हार्ट स्केलेटन। एक्सप्लेन योर आंसर विद 2 एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है डिस्क्राइब द रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट है एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्स एक्शन प्रिवेंट द बॉडी डैमेज ड्यूरिंग एमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्थ इन ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है डिफाइन डायबिटीज एंड एक्सप्लेन टाइप 1 इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन ग्रोथ कोरिलेशन, डिस्क्राइब एपिकल डोमिनेंस इन डिटेल। एंड इसका बी पार्ट है कैन द कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फॉसिल रिकॉर्ड बाय डिस्कस्ड एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, हमारे ये 5 क्वेश्चंस हैं। ये हमने कर लिया फैसलाबाद बोर्ड का 2022 का पास पेपर। बाकी जो है वो मैं आपको रीड नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपको शो कर देती हूँ। आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो में से देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये है जी गुजरावाला बोर्ड का बायो का 2022 का पास पेपर, और ये आप देख सकते हैं। ये इसके एमसीक्यू चल रहे हैं। ठीक है, प्लांट ऑफ न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन ये वाला हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन हो गया, और ये सारे इसके आर्क्यूबैक्टीरिया कैन टॉलरेट टेम्परेचर, ये सारा कुछ इसका ये इसके 17 एमसीक्यू है। नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसके। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है गुजरावाला बोर्ड के रेनल फेलियर, किडनी, और जो है स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, जेनिटल हब्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या होता है, और इसमें से भी 8 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 8 अटैम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में से भी हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो काफ़ी ईजी है। स्केच एंड लेबल सेल साइकिल, ये इसकी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये किसी भी बोर्ड में आ सकती है। उसके बाद ये सेक्शन 2 आ गया हमारा, और इसके अंदर जो है हमारे ऑस्मोरेगुलेटरी एडेप्टेशंस आ गई हैं, इकोसिस्टम आ गया है, ग्रोथ इन प्लांट्स आ गया है, और जेनेटिक कोड आ गया है, वेरियस कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन। ये 17 चैप्टर में से आया है, जो कि काफ़ी बच्चे समझते हैं कि उसका प्लांट पोर्शन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये आप देख सकते हैं कि आया हुआ है। वेरियस रीजंस फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया हुआ है, ह्यूमन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल की डायग्राम आई हुई है अकेली, और एपिस्टेसिस और बॉम्बे फिनोटाइप पे आया हुआ है, नोट एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पे आया हुआ है, और आल्टर द जीन फ्रीक्वेंसी का जो 24 चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आई थिंक सो ये वो वाला क्वेश्चन है। ये साहिवाल बोर्ड का पास्ट पेपर है, इसके भी आप लोग एमसीक्यू देख सकते हैं। ड्यूरिंग पेचिटीन व्हाट टाइप ऑफ रेशो पूछी हुई है उन्होंने, और एक्चुअल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये इसके एमसीक्यू हैं। यूरिन लीव द किडनी थ्रू, और ये विच ऑफ दिस कमर्शियली प्रोड्यूस हार्मोन। यहाँ पर इसके 17 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप लोग साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स आ गया है, एक्सक्रीटोफोर आ गया है, ये देखिए यूरिया साइकिल की स्केच आ गया है, और ये इसी तरह कीमोरिसेप्टर थर्मोरिसेप्टर आ गया है, ओवर डोमिनेंस आ गया है, एपिस्टेसिस आ गया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये तो बहुत ईजी है, और पार्थेनोकार्पी आ गया, फिटर्नल ट्विन्स आ गया, न्यूक्लियोसोम, ट्रांसफॉर्मेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस,
और एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 आ जाता है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच विद डायग्राम, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ह्यूमन स्केलेटन रिफॉर्म्ड बाय ट्रॉमा, म्यूटेशन और STH थायरोक्सिन एंड रीजनल हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ओजोन लेयर डिप्लेशन आ गया है, बर्थ आ गया है इन ह्यूमन फीमेल्स, और डायबिटीज़ मेलिटस डिफ्रेंशिएशन और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताती जाऊँ, आप देख रहे हैं 18 चैप्टर में से रिप्रोडक्शन वाले जो पार्ट है ह्यूमंस का, उसमें से हर बार लॉन्ग आया हुआ है। तो एक चीज़ जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हमें भी हमारे टीचर्स ने बताई थी ऑब्वियसली, कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि रिप्रोडक्टिव साइकिल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ़र्क है। वो बस रिप्रोडक्टिव पढ़ते हैं और वो लिखना शुरू कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल आएगा तो आपने साइकिल लिखना है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा तो आपने सिस्टम लिखना है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के, माइंड में रख कर फिर लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको पता नहीं चले। आपने ध्यान से पहले उसको पढ़ना है कि वहाँ पर सिस्टम वर्ड है या फिर साइकिल वर्ड है, देन आपने लिखना स्टार्ट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बात थी। ये बहावलपुर बोर्ड का हमारे पास आ गया 2022 का पास पेपर, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें MCQ येलो साइटोप्लाज्म गिव राइज टू, और यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA आ गया है, सिंड्रोम हैविंग ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, ये क्रोमोसोम्स की ज़रूर याद कीजिएगा, क्रोमोसोम 21, 18, इन सब का क्या क्या है, रेशो पूछी गई है। और आप देख सकते हैं ये गुजरा वाला बोर्ड में भी आया है, ये बहावलपुर वाले बोर्ड में भी आया है रेशो का। देन जो है हमारे पास आ गया है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आर्कियोबैक्टीरिया का, ये भी रिपीट हुआ है। सक्सेशन आ गया है, ओजोन मॉलिक्यूल आ गया। ये हमारे 17 MCQ कंप्लीट होते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, 2 है हमारे पास, इसमें ज़ीरोफाइट्स आ गया है, यूरिया आ गया है, यूरिया फॉर्म फ्रॉम अमोनिया, सेकेंडरी ग्रोथ आ गया है, पिनेस्टी आ गया है हमारे पास, मोल्टिंग आ गया है, ऑस्टस साइकिल आ गया है। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्टस साइकिल, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस। ऑस्टस साइकिल जो होता है ये ह्यूमन फीमेल्स में नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट ह्यूमन फीमेल्स। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये भी बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो होती हैं वो चैप्टर नंबर 17 और 18 में होती हैं, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स जितने इंपॉर्टेंट है उतनी ही बच्चे इनमें मिस्टेक्स करते हैं। तो आपने ये चीज़ों को जो मर्ज करने वाला काम है ना, ये आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने चीज़ों को डिफ्रेंशिएट रखना है, कौन सी चीज़ आप क्वेश्चन को और हो, बिकॉज FSC में वो क्वेश्चंस घुमा फिरा के देते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है, देन आपने उसका आंसर लिखना है। अगर आप जल्दी जल्दी में लिखते जाएंगे ना, तो आप ऑस्टस की जगह मेंस्ट्रुअल ले, आपका तो गलत हो गया ना, आप सिस्टम की जगह साइकिल लिख के आ जाए। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। सारे हमारे पास RCR आ गया, एक्स विवो इन विवो आ गया, बायोजेनिक एलिमेंट्स आ गए, सेकेंडरी सक्सेशन आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जिसमें से हमने 6 अटैम्प्ट करने हैं। ये देखें 19 चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लास्टुला स्टेज ऑफ चिक डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट म्यूटेशन आ गया है, सेंट्रल डोगमा आ गया है, बायोजियोग्राफी एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन आ गया है। उसके बाद हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं जो कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आ गया है, नाइट्रो